मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा मैथ्स के क्वेश्चन को बनाने में टारगेट सेट करो। इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों ने 2024 ईयर में छोड़ा था। छोड़ने का रीजन ये था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बेसिकली एक कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं पहले की तरह ही अच्छे होंगे। वन शॉट वीडियो का टारगेट हमारा ये है कि 2025 में क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों की तैयारी करवा दूं। ओके, तो हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों की तैयारी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी जोर डालेंगे, सारे थ्योरम्स, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे। इन वेलकम टू अभय एकेडमी चैनल एंड यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट more videos. Okay, my students, and try to forward to your friends also. Thank you. So chapter 1, real number, and the one short video is yours. You have to watch this video carefully and completely. Okay, my bachcho. So fundamental theorem of arithmetic says that a composite number can be expressed as a product of primes, and this decomposition is unique apart from the order in which prime factorization occur. Basically, fundamental theorem of arithmetic is the explanation of factorization of any composite number in terms of prime numbers, right? Like you have a number 30, so 30 can be written as 2 into 3 into 5. ठीक है ना? बच्चे में हम लोग क्या कर पढ़ते थे, क्लास 7-8 में हम लोग क्या पढ़ते थे, 30 को फैक्टराइज करना है, तो 30 को फैक्टराइज हम कैसे करते थे, 2 into 3 into 5. We have started with the smallest number and then we proceed to the greater numbers. Okay? लेकिन यहाँ पर आपको क्लास 10th में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ये कहना चाहता है कि आप 30 को 2 into 3 into 5 भी लिख सकते हैं, 3 into 2 into 5 भी लिख सकते हैं, या 5 into 2 into 3 भी लिख सकते हैं, या 5 into 3 into 2 लिख सकते हैं. That means there is no any restriction for the order of numbers, right? So order of numbers could be anything apart from the order in which the prime factorization occurs. Okay. Similarly, 45 है तो 45 को you can write 3 into 3 into 5. You can write 3 into 5 into 3. You may write 5 into 3 into 3. Order doesn't matter in order to writing the prime factorization of any number. Okay. So this is the explanation. Now here it is showing the tree diagram. So in tree diagram you may easily see, like suppose that you have number 36. So 36 can be factorized in terms of a tree diagram. So 36, the prime number can be obtained first, which is 2, and then 2 into 18, we know it is 36. Now similarly 18, from 18 we can create a prime number 2 again, and this number is 9, and then 3 and 3. So in this way, what can we see that in the left part, we are just writing the prime numbers, prime, 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 and the final number is also prime. So what is 36? 36 is actually written here in terms of 2 into 2 into 3 into 3. So basically what is 2, 2, 3, 3? 2, 2, 3, 3 are the prime numbers. So it is, tree diagram is just a way to find out the prime numbers from a composite number, and after multiplication of these prime numbers you will again get the composite number. Understood? Based on this topic we have some important questions of previous years. Like these are the very important questions that came in the previous years on the basis of फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. तो चलिए देख लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 2021 में 1 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है. द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750. दैट मीन्स सिंपली यू हैव टू फैक्टराइज 3750. उस 3750 के प्रोडक्ट में 2 का कुछ पावर आएगा, 5 का कुछ पावर आएगा, और भी किसी नंबर का पावर आ सकता है. ठीक है, तो उसमें 5 का जो पावर है वो आपको लिखना रहता है. The exponent of 5 in the prime factorization of 3750. We will do this question after this slide. Okay. In 2020 year, again the question is of 1 mark, which is like the total number of factors of a prime number is. किसी भी prime number के 2 factor होते हैं, एक 1 and the number itself. Okay. We know the definition of prime number, that a number which is divisible by 1 and the number itself. Okay. Where 1, जहां पर 1 जो है ना, 1 is not a prime and the number itself will always be a prime.
ठीक है। तो अगर यहां पर ये पूछा है कि द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अगर यहां पर द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर की बात कर दे, प्राइम फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर, देन इट विल बी ओनली वन नंबर एंड दैट नंबर विल बी द नंबर इटसेल्फ। लेकिन यहां पर प्राइम वर्ड यूज नहीं किया गया है, ठीक है। मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। देखो मैं क्या बता रहा हूं, the total number of factors of a prime number. So suppose that you have a prime number 5. 5 having two factors, 1 and 5, right? The number which is divisible by 1 and the number itself is prime number. So how many total factors present here? 2 factors. But among these 2 factors, one is not a prime, but 5 is a prime. Okay? So there could be two questions which can be created here. First question क्या हो सकता है? First question हो सकता है कि the total number of prime factor or factors of a prime number is. तो number of prime factor will be only 1 और वो इस 5 के केस के लिए क्या होगा? ये नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर ये क्वेश्चन पूछे द टोटल नंबर ऑफ, इस प्राइम को हटा दें, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर, सो इट आंसर विल बी 2। क्यों? क्योंकि एक प्राइम फैक्टर के 2 फैक्टर हैं, सॉरी एक प्राइम नंबर के 2 फैक्टर हैं और वो एक 1 है और दूसरा 5 है। इसीलिए इस क्वेश्चन को आप जब बनाएंगे तो उसे ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है बच्चों। So the question of 2 marks which came in 2014 year, determine the value of P and Q so that the prime factorization of 2520 is expressible as 2 to the power 3 into 3 to the power P into Q into 7. Okay, we will discuss this question. Again, you have to do the prime factorization of 2520 and then you will get the unique factors 2, 3, one more number which will replace the value of Q and 7. ठीक है, तो जो भी वैल्यूज मिलेंगे उसको आपको रिप्लेस कर देना है। यू हैव टू कंपेयर द क्वांटिटीज एंड देन यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ P एंड Q. Okay, now again this is the question of 2 marks in 2014. Show that 9 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number n. In these kind of questions it is essential to write the fundamental theorem of arithmetic. Okay, the statement is very important to write, so my dear students you have to learn the definition or the theorem of fundamental theorem of arithmetic. वो जरूर से जरूर आपको याद कर लेना है since the question is of 2 marks. Okay, so if you will write fundamental theorem of arithmetic, the statement, then by writing statement only you will get 1 mark. Okay, and if you will simply show something which is essential in proving 9 to the power n, then it will be far better. Okay, now this is a very important question which came in the year of 2023 and 24. The question is of 2 marks. Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. Now the question is of 3 marks which came in the year 2016. Explain whether the number 3 into 5 into 13 into 46 plus 23 is a prime number or a composite number. So obviously it will be a composite number because one number 23 is common. Okay, so rest number you will get, and again composite number are those numbers having more than 2 factors. So obviously it will have more than 2 factors, so it is well clear for everyone, right? But there are some writing patterns that you have to follow, so keep these things in your mind. Okay, we will discuss everything one by one. So these are the important questions which are related to fundamental theorem of arithmetic. So you can easily see that there are some questions of 1 mark, 2 mark and 3 marks. So my dear students, you have to take care of these things. Okay, so let's move to the next. Okay, so now this is my time to solve the problem. So I'm solving, and as said previously that you have to sit with pen, paper and copy. So my dear students, you have time also. Look, I'm telling you the exam time, what time you should give in examination hall in order to solve these questions. Okay, this question should not take more than 1 minute. This question should not take more than 10 seconds, and this question should not take more than 1 minute. Okay, if you are finding that your speed is not up to this level, it means that you need much more practice. Okay,
So my dear students, try to solve these questions by your own. If you want to pause the video for some time and try to solve these 3 questions. The 3 questions are here on your screen. Thank you. The exponent of 5 in the prime factorization of 3750. So let's solve 3750. It will be divisible by 2. Okay, one more thing I'm telling you. Would you like to start with 2? Is it the right way to do this? No. Here the question is asking for 5. What will be the exponent of 5? And 5 is a prime number. So it's better not to start with 2, but start with 5. So you have to find out the power of 5, exponent of 5. And exponent of 5 is 1, 2, 3, 4. That means 3750 can be expressed as 5 to the power 4, 2 into 3. Okay, right? So what is the answer? Answer will be 4. Okay, so in this part, what I want to tell you, what I want to teach you, I want to teach you that if the question is related to the to the power of 5, you have to focus on the prime number 5. If it is asked to find out the exponent of 2, you must start with 2. If it is asked what is the exponent of 3, you must start with 3. Okay, so that you will get your prime number very easily and very soon. Right, my students? Right. So here I think it is clear. So look, why I'm telling you that this is question of 30 seconds or 1 minute, because if you will start your journey with a tricky manner, then only it will be easy to solve the questions in a very effective time. Okay, my बच्चों, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. The exponent of 5 in the prime factorization of 3750. So let's solve 3750. It will be divisible by 2. Okay, one more thing I'm telling you. Would you like to start with 2? Is it the right way to do this? No. Here the question is asking for 5. What will be the exponent of 5? And 5 is a prime number. So it's better not to start with 2, but start with 5, because fundamental theorem of arithmetic says in order to write 2 first, you can start with 5. Okay? So directly you can start with 5. So let's start with 5, 5, 7, 35, 2, 5, 5, 25, 0. Then again 5, 1, 2, 5, 25, 0. Then again 5, 2, 0, 5 into 6, 30. Now again come to the point. You know 6 is 2 into 3. You know 6 is 2 into 3. So is it necessary to go through this 6? Not at all. What you have to do, you have to find out the power of 5, exponent of 5, and exponent of 5 is 1, 2, 3, 4. That means 3750 can be expressed as 5 to the power 4, 2 into 3. Okay, right? So what is the answer? Answer will be 4. Okay, so in this part, what I want to tell you, what I want to teach you, I want to teach you that if the question is related to the to the power of 5, you have to focus on the prime number 5. If it is asked to find out the exponent of 2, you must start with 2. If it is asked what is the exponent of 3, you must start with 3. Okay, so that you will get your prime number very easily and very soon. Right, my friends? Right. So here I think it is clear. So look, why I'm telling you that this is question of 30 seconds or 1 minute, because if you will start your journey with a tricky manner, then only it will be easy to solve the questions in a very effective time. Okay, my बच्चों, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. Okay, the question is, which is of 1 mark, the total number of factors of a prime number is. देखिए प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. दैट मीन्स एक नंबर जैसे 5 एक नंबर हमने लिया, 5 इज डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ विच इज 5. ओके, अब इसमें जानने वाली बात ये है कि व्हाट इज 1? 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर बट 5 इज अ प्राइम नंबर. ओके, सो दिस क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इन 2 ways. First way is the total number of factors of a prime number. So total number of factors of a prime number is 2. Okay,
but the question can be slightly changed and it can be said as the total number of prime factors of a prime number. So prime factor of a prime number is only 1 and that number is the number itself. Like 5 में के factors 1 और 5 में prime कौन है? प्राइम 5 है एंड 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। इसलिए इस क्वेश्चन को इन दो तरीकों से समझा जा सकता है और पूछा भी जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is of 2 marks which came in the year 2014. The question is determine the value of P and Q so that the prime factorization of 2520 is expressible as 2 to the power 3 into 3 to the power P into Q into 7. So what you have to do actually, 2520 factorize it, 2 1 2 6 0, then again 2 6 3 0, 2 3 1 5, then again it will be 3 1 0 5, then again it will be 3 times 5 times, then it will be 5 and then 7. So 2520 can be expressed as 1 2 3 times 2 2 cube into 1 2 3 square into 5 into 7. Now you have to compare it with the given term which is equivalent to 2 to the power 3 3 to the power P into Q into 7. So finally you will have the values. You can easily see that here 3 to the power 2 and 3 to the power P, so P is equal to 2 and at the place of 5 you have Q, so Q is equal to 5 and that is your solution and the answer also. Understood? Take care. So the next question is of 2 marks which came in the year 2023 and the question is show that 9 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number n. So it will take time, so I have already solved. So I am going to tell you that how could you solve this question. Okay, if you will get any kind of difficulty you may ask in the comment section. If the number 9 to the question is you have to show that means ultimately you have an information that you have to show that 9 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number. If the number 9 to the power n for any n were to end with the digit 0, then it would be divisible by 2 or 5. Look, if any number is divisible by 2 or 5, then only it will end with digit 0. Okay, that is the prime factorization of 9 to the power n would contain the prime 2 और 5. जैसे कोई चीज़ घर में होता है तो हम लोग समझाते हैं कि देखो बेटा ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे नहीं होगा, ये करोगे तो वो नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे हम लोग गार्जियन हमारे समझाते हैं। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में एक गार्जियन की तरह आपको समझाना है कि ये नहीं है इसलिए ये नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है? तो देखिए क्या नहीं और क्या नहीं मिलेगा। Here you have to show that 9 to the power n cannot end with the digit 0. डिजिट 0 से एंड होने का मतलब क्या है? अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है, 0 से एंड होने का मतलब क्या है? कोई भी नंबर का 0 से एंड होने का मतलब क्या है? इसको समझिए। Like you take a number 30. 30 is a number which end with the digit 0. डिजिट 0 से एंड होने का मतलब ये है कि इसका यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा 30 को क्या हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10, और क्या 10 के दो फैक्टर्स 2 और 5 हैं? यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है यानी वो 0 से एंड होता है तो उसके दो फैक्टर्स होंगे ही होंगे, और वो कौन कौन होंगे? 2 और 5, क्योंकि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने से ही क्या मिलेगा? 10। अब बोलेगा सर 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा और 20 का लास्ट डिजिट 0 है, तो क्या ये नहीं होगा? तो अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वेयर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic always exist
फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर। ओके, दैट मीन्स जो भी यहाँ पे बातें हैं ना वो कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन इस कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन पे फोकस करना है। सो इन ऑर्डर टू राइट 4 into 5, 5 is a prime but 4 is composite, so we can't accept 4. Okay, so what are the least numbers, what are the least prime numbers by which the multiplication would be 10? तो देखो 2 और 5 ही वो लीस्ट नंबर हैं जिन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मिलेगा। ठीक है, तो एनी नंबर विच इज एंडिंग विद डिजिट 0 मस्ट हैव 2 फैक्टर्स एंड दैट विल बी 2 and 5, यानी इसका होना जरूरी है, नहीं तो वो कोई भी नंबर हो 0 से एंड नहीं होगा। तो अब देखिए ये मैंने पूरी की पूरी कहानी आपको समझा दी। अब 9 to the power n हो जाए, 6 to the power n हो जाए, 18 to the power n हो जाए, 11 to the power n हो जाए, n, अब इस पे थोड़ा हम लोग फोकस करते हैं। आइए समझते। द नंबर वाज 9 to the power n. ओके, इफ द नंबर is 9 to the power n and we are factorizing this will be 3 into 3 to the power n. Then it can be written as 3 to the power n into 3 to the power n. Now in this situation both the numbers are 3. Okay, so whatever be the value of n, where n belongs to natural number as it is said in the question, so n belongs to natural number for any n का वैल्यू तुम नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 कुछ भी लोगे, यू कैन टेक एनी नंबर। ठीक है, अब 3 to the power अगर आप 2 रखते हो, so 3 into 3 will be 9. If you are writing 3 to the power n is equal to 3 रखते हो, 3 into 9 27. अगर आप 3 to the power 4 रखते हो, then 3 3 is 9 27 3 81. Okay, so what are you getting actually in all these numbers? Whatever be the power, whatever be the value of n, it will never end with digit 0. Why? Because there is no any factor related to 2 and 5. 2 5 है ही नहीं। 9 के पास कौन कौन फैक्टर है? 1 है, 3 है और 9 है। इसके अलावा इसके पास ना ही 2 है ना ही 5 है, यानी ये 0 से एंड किसी भी कीमत पर नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है कि हम ये कैसे समझेंगे कि ये होगा कि नहीं होगा। What the fundamental theorem of arithmetic says? Fundamental theorem of arithmetic says that any composite number can be expressed in the terms of prime numbers where the order doesn't matter, right? So and that factorization is always unique. यानी 9 को जो तुम फैक्टराइज कर रहे हो 3 into 3 में, इसको 3 into 3 के अलावा और कुछ नहीं लिख सकते हैं। कहने का मतलब हम इसमें 2 और 5 का मिश्रण नहीं कर सकते हैं, हम इसमें किसी भी तरीके से 2 into 5 नहीं लिख सकते हैं। यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इस बात की गारंटी लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे भाई, 9 को तुम 2 और 5 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो तो नहीं लिख सकते हो। Okay, so someone is here to take the guarantee of the question and the proof of that part also. जैसे हम कोई भी, जैसे मैं कैमरा से शूट कर रहा हूँ, तो जब मैं कैमरा खरीदने गया तो मैंने कैमरे वाले से पूछा कि अगर मान लीजिए कल ख़राब हो गया तो क्या, तो बोला कि 5 साल की गारंटी है, ठीक है, या 3 साल की वारंटी है। तो कोई भी कंपनी गारंटी या वारंटी लेता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन गारंटी दे रहा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इस बात की गारंटी दे रहा है कि नहीं, 9 इज ऑलवेज 3 into 3, इट विल नेवर गिव एनी काइंड ऑफ पोजीशन फॉर द वैल्यूज ऑफ 2 and 5 फॉर द फैक्टराइजेशन ऑफ 9। ठीक है ना। तो ये सारी बातें कौन कह रहा है? ये सारी बातें कह रहा है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। So on the basis of the given statement, okay, now we are going to prove that how we can say that 9 to the power n cannot end with the digit 0. The number 9 to the power n for any n were to end with the digit 0, then it would be divisible by 2 or 5. Okay, now that is the prime factorization of 9 to the power n would contain the primes 2 or 5. Okay, it is well said. But 9 to the power n is equal to 3 into 3 to the power n, which is 3 to the power n into 3 to the power n, so that the primes in factorization of 9 to the power n is only 3. What we have
observed here that 9 is 3 into 3. That means which prime factorization, which prime number is involved in the factorization of 9? That is only 3, right? So the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees what? Guarantees that there are no other prime except 3 in the prime factorization of 9 to the power n. कौन गारंटी ले रहा है? आपकी कौन गारंटी ले रहा है? आपकी गारंटी आपके स्कूल के टीचर्स ले रहे हैं, आपके माता पिता ले रहे हैं। उसी तरीके से इस क्वेश्चन की गारंटी कौन ले रहा है? इस क्वेश्चन की गारंटी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लेता है और वो कहता है कि हाँ मैं इसके यूनिकनेस के लिए जिम्मेवार हूँ। यूनिकनेस के लिए जिम्मेदार हूँ कहने का मतलब 9 इज only expressed as 3 into 3. There is no any existence of 2, there is no existence of 5 or 10. Okay? यानी 3 का ही सिर्फ एग्जिस्टेंस है और ये कौन कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक छाती ठोक के कहता है। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 9 to the power n ends with the digit 0। ठीक है ना? तो who is taking guarantee? You are not taking guarantee. Mathematics is also not taking guarantee. Fundamental theorem of arithmetic, which is the part of mathematics, is taking guarantee that yes, 9 to the power n having only a prime factor which is 3. It has neither 2 nor 5, so it will not end with the digit 0. ओके सो बच्चे, अगर आप इस बात को समझ जाते हैं, इस बात को फील कर लेते हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेटेज ऑफ मार्किंग स्कीम इन दिस वे, यू विल हैव गेट दिस मच मार्क्स। यहाँ तक आपको आधा मार्क मिलेगा, फिर यहाँ आपको आधा मार्क मिलेगा, इसको लिखने में आपको 1 मार्क मिल जाएगा। इस तरीके से इसमें 2 मार्क्स की स्कीम सेट होती है। ठीक है? अगर आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक नहीं लिखते हैं तो बस आपकी गारंटी से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना? जैसे मान लो कि मैं उषा का फ़ैन लेने जाऊं और दुकानदार बोले कि मैं गारंटी लेता हूं, आइएगा। ठीक है? और जब आप जाइएगा आपका कुछ ख़राब हो जाएगा तो बोलेगा मैं तो था ही नहीं, फिर आपका गारंटी का तो धज्जिया उड़ गया। इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए आप गारंटी नहीं ले रहे हैं। कौन गारंटी ले रहा है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटी ले रहा है। ठीक है? बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स विच केम इन द ईयर 2016। और भी बहुत बार आया है लेकिन मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है आपके लिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वेदर द नंबर 3 into 5 into 13 into 46 plus 23 इज अ प्राइम नंबर और अ कॉम्पोजिट नंबर। देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका टारगेट क्या होना चाहिए वो समझ लो। द टारगेट इज फॉर कॉम्पोजिट नंबर इज टू शो दैट इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। देखो, ऐसा क्वेश्चन ना हमेशा कॉम्पोजिट नंबर ही होता है, तय बात है। ठीक है ना? अगर कुछ लिख करके यहाँ प्लस किया हुआ है तो समझ जाइए प्लस किया हुआ है या माइनस किया हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 99% चांस है कि वो नंबर कॉम्पोजिट ही होगा। तो कॉम्पोजिट होता क्या है? कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। द नंबर विच इज नॉट प्राइम इज कॉम्पोजिट नंबर, दैट मीन्स इट विल हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, राइट? सो द टारगेट इज टू एक्सप्रेस number of factors and that should be greater than or equal to 3. So this question will be solved in this way. We have 3 into 5 into 13 into 46 plus 23, which can be written as 23 is common, then 3 into 5 into 13 into 2 plus 1. Solve this one. So 23 into 3 5 15, 15 to 30, 33 39 390 plus 1, it should be in bracket, then 23 into 391. Okay, now अब यहाँ पर क्या होता है, 2 तरह के बंदे हैं। एक बंदा सोचता है कि 23 into 391 आ गया है,
391 को चलो फैक्टराइज करते हैं। वो 391 के फैक्टराइजेशन में दिमाग लगाएगा और इसको फैक्टराइज करेगा। अब चेक करेगा 2 से कट रहा है नहीं, 3 से 3 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से 2 3 से नहीं कट रहा है तो 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से देख लेते हैं, 7 5 35 4 1। अब देखो इस तरीके से कि ये क्या हो रहा है, दिस इज जस्ट द वेस्टेज ऑफ योर टाइम। वाई आर यू डूइंग दिस? Because you don't understand the meaning of composite number. You don't have target to achieve the final solution of this kind of question. मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा मैथ्स के क्वेश्चन को बनाने में टारगेट सेट करो। टारगेट क्या होना चाहिए कि तुम्हें ये पता है कि ये कॉम्पोजिट नंबर होने वाला है, ये तुम्हें पता चल जाएगा। और ये कैसे पता चलेगा वो देखिए द नंबर इज 23 एंड 391। अब मैं आपको एक नंबर देता हूं, इसको छोड़ करके मैं एक नंबर देता हूं आपको 2 × 3। चलो 3 को भी हटा दो, 2 × 30 ले लो, ठीक है। 2 × 30 क्या ये एक प्राइम नंबर है? सो 2 इज अ प्राइम नंबर, 30 या कॉम्पोजिट नंबर। अच्छा ये अगर कॉम्पोजिट है तो ये प्राइम तो हुआ नहीं। 30 अगर कॉम्पोजिट है तो पूरा का पूरा नंबर प्राइम तो हुआ नहीं, यानी कि पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया? कॉम्पोजिट हो गया। चलिए अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूं और मैं आपको एक सोच लेता हूं 2 × 3। 2 इज प्राइम, 3 इज ऑल्सो प्राइम। इज इट अ प्राइम नंबर? द होल इज अ प्राइम नंबर और नॉट? 2 प्राइम, 3 प्राइम एंड 2 × 3 इज कॉम्पोजिट। पॉइंट कॉम्पोजिट ही नहीं है, पॉइंट ये है कि 2 × 3 क्या है? 6 है। तो टोटल व्हाट आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन 2 × 3? 2 × 3 का फैक्टर 2, 2 × 3 का फैक्टर 3, 2 × 3 का फैक्टर 2 × 3 खुद, यानी 3 फैक्टर आ गया ना। कम से कम 3 फैक्टर आपको दिखाना था। 3 फैक्टर्स इज ऑलरेडी विजिबल, क्लियरली विजिबल। So why is important to write more factors? There is no any importance. There is no any importance. तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखिए समझिए बात को। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ इस बात को आप समझेंगे तो एग्जाम में टाइम बचाएंगे, अगर बात नहीं समझेंगे तो एग्जाम में टाइम बर्बाद करके आएंगे। देखिए 23 × 391 में 23 आपको 391 पता नहीं चल रहा है क्योंकि 7 तक हम पहुंच गए, 8 पहुंच जाएंगे। हो सकता है कोई टेबल उसको डिवाइड कर दे, हो सकता है कि 391 एक प्राइम नंबर हो, कुछ भी हो सकता है। 23 × 391 में समझेंगे बात। 23 × 391 को वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं? तो पहला फैक्टर है 23 खुद, दूसरा है 391 और तीसरा कौन है? तीसरा 23 × 391 खुद है। पूरा का पूरा नंबर पूरे के पूरे को डिवाइड कर सकता है, पूरा नंबर पूरे को डिवाइड कर सकता है। तो क्या ही जरूरत है कि मैं 391 के ऊपर दिमाग लगाऊं? कोई जरूरत नहीं। सो मैं क्या करूंगा? आई विल सिंपली शो हियर दैट सिंस 23 × 391 having 3 factors, कौन? 23, 391 and 23 × 391, ठीक है। Therefore given number, what is the given number? 3 × 5 × 13 × 46 plus 23 has more than 2 factors. Therefore it is a composite number. Simple. Composite number. That's it. क्योंकि composite number having more than 2 factors. अगर आप किसी भी तरीके से 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखाने की काबिलियत रखते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 391 पे दिमाग लगाएं और अपना टाइम वेस्ट करें। तो देखिए आप कहते हैं ना, अरे 391 आ गया था, हमको उसको चेक करने में ही मेरा 5 मिनट चला गया। बेवकूफ़ी वाला काम करेंगे तो 5 मिनट क्या 10 मिनट चला जाएगा। तो आपको बनना है स्मार्ट। एआई की दुनिया आ गई है, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलने से आप स्मार्ट नहीं बन जाएंगे, आपके ब्रेन को भी स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क टारगेट सेट किए बिना नहीं होता है। सो ऑलवेज माय फ्रेंड्स,
try to set the target in every question so that you will get very effective solution. Okay, so let's move to the next. So our next topic is problem related to HCF LCM. इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक रिलेटेड जितने भी रिवीजन थे वो हो चुकी है. अब आपको करना ये है कि यू हैव टू टेक द NCERT एग्जाम्पलर फॉर अ वेरी इफेक्टिव रिवीजन, है ना. अगर आप NCERT एग्जाम्पलर्स बनाते हो तो वो बहुत अच्छा किताब है आपके लिए. NCERT CBSE का आपने बुक तो बना ही लिया है, अब एग्जाम्पलर बनाओ, ठीक है. तो मेरे इस क्लास के बाद आप NCERT एग्जाम्पलर अगर बनाते हैं या फिर किसी भी सैम्पल पेपर को भी बनाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा. लेकिन NCERT एग्जाम्पलर से देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन भिड़ते हैं, ठीक है. तो बेहतर है कि आप उसको बनाएं. चलिए अब हमें समझना है प्रॉब्लम रिलेटेड टू HCF एंड LCM. द कॉन्सेप्ट इज HCF of AB into LCM of AB is equal to A into B. These are some questions which are MCQ questions जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं. चलिए देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर. ठीक है, इसका लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर आपका 4 हो जाता है, लीस्ट प्राइम नंबर 2 हो जाता है एंड द रेशियो विल बी 1:2. ओके, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच a girl can walk 95 meter and 171 meter in an exact number of minutes. Okay, HCF और LCM के concept लगेंगे. 3 alarm clocks ring their alarms at regular intervals of 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time will they again beep for the first time? तो इसको भी आप बना सकते हैं. Okay, the question of 1 mark in 2021, the LCM of two numbers is 2400, which of the following cannot be their HCF. ये बताना है कि इसमें से कौन HCF इसका नहीं होगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बना करके देखिएगा. Okay, I'm giving you the time limit for the above questions so that you can try after pausing the video. Okay, so this will not take more than 10 seconds. Okay, which is 1 minute, not more than that. ओके, ये थोड़ा सा आपको लग सकता है तो इसके लिए मैं आपको 90 सेकेंड्स दे देता हूँ. 90 सेकेंड्स में आप इजीली बना सकते हैं. इस क्वेश्चन को भी बनाने में आपको 30 to 45 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. ठीक है, अगर आप इस स्पीड में क्वेश्चन बना पाते हैं दैट मीन्स यू आर अ गुड स्टूडेंट्स नाउ एंड यू आर रेडी फॉर बोर्ड. ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे. कुछ और क्वेश्चंस हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस. अगर आपको मन है तो आप इन क्वेश्चन को बनाइए, वीडियो को पॉज करिए, बनाइए और फटाफट अपने चीज़ों को रिवीजन करना शुरू करिए क्योंकि आपके लिए रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. चलिए देखिए. सो द क्वेश्चन इज ऑफ 1 mark which came in the year 2020 and the question is the HCF and LCM of 12, 21 and 15 respectively are. आपको क्या करना है, इसका HCF और LCM निकालना है. अभी हम लोग अगले क्लास में समझेंगे. 2023 के क्वेश्चन है 2 marks का. 2 numbers are in the ratio 2:3 and the LCM is 180. What is the HCF of these numbers? Okay, ये भी क्वेश्चन हो गया. 2 tankers contain 850 liters and 680 liters of petrol respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the petrol of either tanker in exact number of times. Okay, now the next question of 3 marks in 2018. Find HCF and LCM of 404 and 96 and verify that HCF and LCM is equal to product of these two given numbers. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन 3 marks आ जाएगा और बहुत ही इजीली आप इसको बना भी लेंगे. ठीक है ना. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे. चलिए आपको टाइम फ्रेम दे दूं फटाफट. दिस क्वेश्चन अगेन 1 minute, नॉट मोर देन दैट. इस क्वेश्चन को आपको बनाने में भी कम से कम 2 मिनट लग जाना चाहिए. ये एग्ज़ाम हॉल में, इस एग्ज़ाम हॉल में आप इस स्पीड में क्वेश्चन बनाएंगे. ये थोड़ा सा आपको सोचने समझने में कॉम्प्लिकेशन दे सकता है, इसलिए इसको भी 2 to 3 मिनट्स दे सकते हैं आप इसके लिए. ठीक है, इसको आपको 3 to 4 मिनट्स भी लग सकता है. अच्छे से लिखना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, अगर फास्ट लिखते हैं तो 3 मिनट इज़ सफिशिएंट. ठीक है, लेकिन फिर भी एक सेफ साइड दे करके एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए मैं ये टाइम लिमिट दे रहा हूँ. हालांकि अगर एज अ टीचर मैं इसे बनाऊँ तो मैं ये सारे क्वेश्चन 3 मिनट में बना दूँगा. ठीक है, तो दैट्स इज़ योर स्पीड. चाहे तो आप उस स्पीड में बना सकते हैं और बच्चे बनाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाते हैं. चलिए देखिए. आई थिंक यू हैव डन. If you have not done then you should do it because
प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट हेयर। 12 को पहले फैक्टराइज कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3, 21 is 3 into 7 and then 15 is 3 into 5. Okay, so LCM, first of all we are finding HCF here. So highest common factor is 2 to 3, 3, 7, nothing. So HCF of 12, 21 and 15 is, है ना, अगर कोई भी नंबर नहीं है तो 1 आएगा। 1 एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर को डिवाइड करता है, इसलिए 1 होगा। ओके, अब LCM की बात कर लें तो LCM में क्या हो जाएगा? LCM में हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, तो इट विल बी 2 to the 4, 3 to 12, 12 5 60, 6 7 जा 420, 420, राइट। तो LCM कितना आ गया? 420 आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि सर आप कैसे निकाले, आपको याद था क्या? नहीं, मैंने दिमाग यूज़ किया। कोई भी चीज़ याद करना ज़रूरी होता है मैथ्स में, फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, लेकिन उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अगर मैं आपको बोलूँ कि 24 और 36 का LCM निकालिए, आप क्या करेंगे? आपका हिसाब किताब कैसे बैठने वाला है? यू विल डू लाइक दिस, 24 36 और फिर ये काम आप समझ गए होंगे मैं क्या बताने जा रहा हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन बोलता है वेर यू हैव टू फाइंड आउट LCM एंड HCF बोथ, तो आई विल वर्क फॉर HCF एंड उसी HCF से मैं LCM भी निकाल दूंगा। कैसे? देखिए मैं HCF, आई एम डूइंग द वर्क फॉर HCF राइट हियर नाउ। So 24 can be written as 2 12 2 6 2 3 and 36 is 2 18 2 9 3 3. Now what is HCF? HCF will be 2 2 3, 2 into 2 into 3, 2 2 4 3 12, ये हो गया हमारा HCF। अब मैं LCM के लिए क्या करूँगा वो देखिए। मैं LCM के लिए, LCM का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ LCM व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द हाईएस्ट power of each prime factor. So highest power of each prime factor, here it will be 2 cube into 3 and here it is 2 square into 3 square. So which is among these two, which is the highest power of 2? This is 2 cube. So first will be 2 cube and second is 3 2 square 3 square 3 square, so it will be 3 square. Now multiplying these two, 2 to the 4 8 and 8 6 8 9 ja 72. Okay, so this 72 will be the LCM, right? Okay, moving to the next question that we have is two numbers are in the ratio 2:3 and the LCM is 180. What is the HCF of these numbers? तो ये question directly आपका इस पर आधारित है। HCF of AB into LCM of AB is equal to A into B। कैसे डिपेंडेंट है समझ लेते हैं। देखिए नंबर्स जो है ना वो रेशियो में दिए हुए हैं। लेट द नंबर्स आर 2x एंड 3x। अच्छा 2x और 3x में HCF क्या है बताइए, फटाफट आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए फटाफट। 2x और 3x का HCF क्या है? तो HCF, since HCF of 2x and 3x is x, because x is common to both. Okay, ठीक है। अब हम लोग सीधा आ जाते हैं इस पर। So let it be equation number 1 and equation number 1 implies HCF of A and B which is 2x and 3x, तो x हो गया, into LCM is given 180 and the two numbers are 2x and 3x। क्लियर है बात? अब आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। सो इट विल बी 180x and this is 2 into 3 6x square। we can calculate this x and x will cancel, so 6x equal to 180, so x is equal to 180 by 6 is 30। what is x is 30। क्या निकालना है? what is the HCF of these numbers? तो HCF क्या था? HCF x था, so x का वैल्यू 30 आ गया। therefore required HCF is 30। आंसर
Okay, any doubt? No doubt. So pause the video and note it down. जब इस क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग, the question is find HCF and LCM of 404 and 96 and verify that HCF into LCM is equal to product of two given numbers. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2018 में आ चुका है, 2025 में भी आ सकता है। तो चलिए फटाफट करेंगे हम लोग। विल फैक्टराइजिंग 96 एंड 404, 96 404 को फैक्टराइज करना है। इट विल बी 2 देन सॉरी नॉट लाइक दिस, 202 को मन में रखिए, देन अगेन 2 इंटू 101 एंड देन 96 को फैक्टराइज करें। 2 इंटू 96 का याद नहीं आ रहा हो तो ऐसे फटाफट करो। 2 4 8 16 2 24 2 12 2 6 2 3। अब देखो, क्या आप क्लास 8 पढ़ चुके हैं? बिल्कुल पढ़ चुके हैं सर, तभी तो 10th में है। तो क्लास 8 में आपने पढ़ा था एक्सपोनेंट्स, और you are allowed to write prime factorization in exponential form also। तो आपको थोड़ा सा अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करते हुए आप इसे लिख सकते हैं 2 to the power 1 2 3 4 5 2 to the power 5 into 3। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आप LCM और HCF बहुत ही ईजिली लिख देंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो आपका HCF क्या होगा मेरे दोस्तों? HCF हो जाएगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 स्क्वायर इज कॉमन, 2 स्क्वायर 4, ये हो गया HCF। LCM अभी हमने क्या बताया? हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम नंबर। हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम नंबर इज 2 to the power 5 इजिली विजिबल। ठीक है, प्राइम नंबर एक 3 है तो 3 भी लेंगे, प्राइम नंबर एक 101 है तो वो भी लेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 9696। Okay, so LCM will be 9696। Now we have to verify this। So देखो ये बनाया ना, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको मिलेगा 1.5 मार्क्स, इतना करेंगे तो ठीक है ना। इस या एक नंबर भी मिल सकता है। HCF निकालने पर आधा नंबर, LCM निकालने पर आधा नंबर, एक नंबर हो गया। डिपेंड करता है, 1.5 मार्क्स का भी हो सकता है, 2 मार्क्स का भी हो सकता है। 404 का फैक्टराइजेशन करोगे आधा नंबर, 96 का करोगे आधा नंबर, HCF निकालोगे आधा नंबर, LCM निकालोगे आधा नंबर। ठीक है ना, डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने क्या ज़्यादा सोचा हुआ है, कैसे कैसे वो सोच रहा है, क्या क्या सोच रहा है, ये डिपेंड करता है सब कुछ। ठीक है, लेकिन आपको इतना लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर या कम से कम 1.5 नंबर, मतलब 1.5 नंबर मिल जाएगा। अच्छा, अब वेरिफिकेशन करना है तो फटाफट लिखिए यहाँ वेरीफाइंग। थोड़ा लिखना उठना सीखिए, शॉर्टकट लीजिएगा तो पता चलेगा IIT निकल गया और 10th में फेल हो गए, मतलब 12th में फेल हो गए, तो वैसे नहीं करेंगे। ठीक है, सो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू, देखो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो। HCF कितना है? HCF इज 4 एंड दिस इज LCM इज 9696। मल्टीप्लाई करना है, 4 6 24 2 4 9 36 37 38 3 24 25 7 2 36 37 38। This is 38,784. Now the right hand side, which is product of two numbers, so write here product of two numbers। Okay, आप ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ पे LHS लिख दीजिए, LHS equal to something। ओके, एंड हेयर दिस इज RHS इक्वल टू समथिंग। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में आपका क्या हो जाएगा? 2 नंबर्स है आपका 404 एंड सेकेंड नंबर इज 96 एंड द प्रोडक्ट विल बी 38,784। सो इन दिस वे यू विल हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस इट इज वेरीफाइड। दैट्स इट। इतना करेंगे आपको कितना मिलेगा? 3 out of 3। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। So the next question that we have is the ratio of the least composite number and the least prime number is, it's very easy. Least composite number is 4 and the least prime number is 2, right? So the first is the number 4 and the second is 2. So the ratio is 4 is to 2, which is 2 is to 1. That is the answer.
नो डाउट। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का है प्रूविंग इरैशनल नंबर्स। ओके, देखिए क्वेश्चन पे फटाफट फोकस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑफ 3 मार्क्स and this came in 2023 year. The question is prove that root 5 is an irrational number. मैक्सिमम चांस है कि 2025 में रूट 5 ही आएगा, इसलिए इसको जरूर बनाइएगा। 2019 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है, प्रूव दैट 2 + √3/5 इज एन इरैशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का एक और क्वेश्चन 2024 में आ चुका है, प्रूव दैट √2 + √3² इज एन इरैशनल नंबर गिवन दैट √6 इज एन इरैशनल नंबर। इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों ने 2024 ईयर में छोड़ा था। छोड़ने का रीज़न ये था कि क्वेश्चन √2 √3 के टर्म में है और यहाँ √6 दे दिया है, तो बच्चा सोचा कि अरे ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम नहीं बना पाएंगे। लेकिन बच्चे ने टारगेट सेट नहीं किया और इसी वजह से उसने क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को आज बताऊंगा कि हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ओके, 2019, 23, 24 में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है, प्रूव दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर। हाउ कैन वी प्रूव दैट √2 + √3² इज एन इरैशनल नंबर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें काम कैसे करना है, उस काम पे हम फोकस करेंगे। तो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √2 + √3² इज रैशनल। फटाफट समझेंगे क्योंकि इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जा चुका है, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए और देखिए कि कैसे इसको अच्छे से समझ के बनाना रहता है। ठीक है, इसका शॉर्टकट वे भी बताया गया है कि किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से आप चीज़ों को बना सकते हैं। ठीक है, दैट इज √2 + √3² कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर P and Q are co-primes and Q is not equal to 0। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं कि what we have assumed that it is rational। rational assume किया, इसका मतलब क्या है कि ये P/Q के फॉर्म में है और हमारा assumption कहाँ तक है, हमारा assumption यहाँ तक है कि P and Q क्या है, co-primes हैं। P और Q co-prime होना चाहिए। ठीक है ना, co-prime होना चाहिए। अब हमें स्क्वायर है तो वी विल टेक द स्क्वायरिंग। सो लेट्स टेक √² + √3² + 2 √2 √3 इज इक्वल टू p/q। इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बी 2 + 3 + 2 √6 इक्वल टू p/q एंड फाइनली इट इज़ 5 + 2 √6 इज इक्वल टू p/q। देखो बच्चा क्या सोचता है, √6 कहाँ से आया। देखो √6 इज इरैशनल। क्या इसमें √6 दिख रहा है, ये √6 दिख रहा है ना। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में √2 + √3² पे फोकस नहीं है। फोकस किस पर है, फोकस इस एक्सप्रेशन पर है। अब इस क्वेश्चन के बदले ये भी दे सकता था, प्रूव दैट 5 + 2 √6 इज इरैशनल वेयर √6 इज इरैशनल। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इतना एडवांस स्टेप आपके माइंड में कैलकुलेट होना चाहिए। अगर वो कैलकुलेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नाउ इट विल बी implies 2 √6 is equal to p/q - 5 which can be written as p - 5q/5 q/q। then it will be now √6 is equal to p - 5q/2q। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या समझ में आ रही थी बात, √6 इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। ठीक है, सिंस p q 5 2, ये जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1। ओके, और इस इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखो, द राइट हैंड साइड हैविंग p q 5 and 2, दीज आर द इंटीजर्स इन्वॉल्व्ड। जहां पर p और q क्या है, को प्राइम है। को प्राइम होता क्या है, को प्राइम इंटीजर होता है, को प्राइम इंटीजर ही होता है, यानी p q 5 2 आर इंटीजर्स। अब तुम इंटीजर्स में कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन लगाओगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन लगाओगे, कुछ भी करोगे, देन यू विल ऑलवेज गेट द रैशनल नंबर। इट मीन्स दैट दिस इंप्लाइज p - 5q/2q इज रैशनल, but we know that we have √6 an irrational number।
एन इरेशनल नंबर। अब देखिए व्हाट इज द कॉन्ट्राडिक्शन हियर, p माइनस 5q/2q एक रैशनल नंबर है, जबकि ये दिया हुआ है कि √6 एक इरेशनल नंबर है। यानी हमने लिखा हुआ क्या है, एक इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर के इक्वल दिखा दिया है, अल्टीमेटली आया है वैसे, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये अपने आप में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि हम भैया इरेशनल हैं और हम भैया रैशनल हैं और हम दोनों इक्वल हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। देयरफॉर इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। और ये ऐसा क्यों हुआ? Therefore, this is a contradiction. This is a contradiction, and this contradiction has arisen because of our wrong assumption. Assumption that √2 plus √3 whole square is rational. Hence, √2 plus √3 whole square is an irrational number. And this is the proof. Right, बच्चों? I think you have understood what I want to say here. Okay, so in these kind of questions, here you have to show that irrational number is not equal to rational number. But here you are saying in equation number 1, what are you saying? In equation number 1 you are saying that √6 is equal to, तो इक्वेशन 1 क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा है कि हम इरेशनल हैं और हम रैशनल हैं, तो हम दोनों तो कभी इक्वल हो नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जब इक्वल नहीं हो सकते हैं तो इसको हम रैशनल नहीं बोल सकते हैं, और रैशनल नहीं बोल सकते हैं। तो ये रैशनल हमने क्यों बोला, क्योंकि हमारा अजम्पशन ही गलत था, हमारा सोचने का नज़रिया ही गलत था, और ये गलत हो गया, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। आई थिंक बच्चे आप समझ गए होंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ओके, एंड दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं असर्शन और रीजन का। क्वेश्चन नंबर 19-20 ऑफ MCQ पार्ट ऑफ योर मैथ्स पेपर। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में बच्चे अक्सर फंसते हैं और एक माइंडसेट के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19-20 बनेगा नहीं बनेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और 20 पे फोकस करेंगे और समझेंगे कि आप कैसे समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को बनाना कैसे है, ठीक है। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझना है ताकि आपको असर्शन और रीजन का मतलब क्लियर हो जाए। देखिए, असर्शन का मतलब क्या है, अ स्टेटमेंट दैट क्लेम्स समथिंग, किसी चीज को क्लेम करना, ठीक है ना। जब भी कोई स्टेटमेंट किसी बात का क्लेम करता है तो वो असर्शन में आता है। क्लेम का मतलब क्या है, जैसे मैं क्लेम करता हूं कि इन दिस ट्रायंगल द सम ऑफ एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल इज 180 डिग्री, आई एम क्लेमिंग इट। तो मैं किस चीज पे, मैं किस बात पर क्लेम कर रहा हूं, मैं क्लेम एक सच्चाई पे कर रहा हूं, मैं क्लेम एक सच्चाई पे कर रहा हूं, और वो सच्चाई ये है कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये दुनिया जानती है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है, तो होता है भाई, ठीक है। यानी अगर मैं कहूं कि दिस इज एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 एंड इट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इस दुनिया का बच्चा यही कहेगा कि हाँ ये बात सही है और आपका क्लेम परफेक्ट है, आपका क्लेम सही है, ठीक है। उसी तरीके से सपोज दैट दिस इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड आई एम क्लेमिंग दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो मैं किस बात पर क्लेम कर रहा हूं, जो सच है उस पर मैं क्लेम कर रहा हूं, उसको मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं क्या, द अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। मैं ये भी क्लेम कर सकता हूं कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो आई एम क्लेमिंग ऑन द फैक्ट, ठीक है ना। किस पर क्लेम करना है, यू आर क्लेमिंग ऑन द फैक्ट विच इज अ ट्रू फैक्ट, ठीक है ना।
फैक्ट क्या हो सकता है, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। जैसे फॉल्स में मैं बोलूँगा कि 3 is an irrational number। आई एम टेलिंग दैट 3 is an irrational number। अब बताइए कि क्या ये एक फैक्ट है, क्या ये सच है, तो assertion क्या हो जाएगा, assertion is wrong। सीधी सी बात समझ गए, एक छोटी सी बात समझना है, इसमें ज़्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। assertion is a fact which must be true। अगर वो ट्रू नहीं है तो वो फॉल्स होगा, ठीक है। जैसे 3 एक नंबर है। 3 कैसा नंबर है, 3 एक रियल नंबर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, ये सारे के सारे हैं। मैं बोलूँ 3 इज अ रैशनल नंबर, सो दिस क्लेम, दिस स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट, सो माई असर्शन विल बी करेक्ट। मैं बोलूँ कि 3 इज एन इरैशनल नंबर, तो अदर पर्सन कैन क्लेम नो 3 इज अ रैशनल नंबर। तो दूसरा आदमी किस बात पर क्लेम कर रहा है, किस बात को बोल रहा है, कौन से फैक्ट को बोल रहा है, वो उसी फैक्ट को बोल रहा है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। सो द यूनिवर्सल ट्रूथ इज अंडर द असर्शन पार्ट, ठीक है। अब उस असर्शन पार्ट को दूसरा स्टेटमेंट जो कि एक रीजन की तरह दी हुई है, वो किस हद तक एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, दैट यू हैव टू एनालाइज, ठीक है। तो वो एनालिसिस आपको रीजन में करना पड़ता है या पड़ सकता है, ठीक है। तो अब देखिए रीजन क्या है, स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन। व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, व्हाट काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन। जैसे इफ आई वांट टू गिव द रीजन फॉर पॉइंट नंबर 2, what assertion was the opposite sides of the parallelogram are equal, and the reason is a diagonal divides a parallelogram into 2 congruent triangles। अब आप थोड़ा सा 9th क्लास चले जाइए। जब आप 9th क्लास में जाते हैं तो आपके पास एक चैप्टर था क्वाड्रिलैटरल, जिसमें आपको कुछ बातें दी हुई होती थी और आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद कहते थे कि बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स अपोजिट साइड्स AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। मीन्स व्हाट, मीन्स दैट द फैक्ट दैट इज टोल्ड द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, उसका रीजन क्या दे रहा है कि द डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका मतलब ये है, अगर पीछे 9th क्लास में आप जा करके सोचते हैं तो यही मतलब निकलता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जो कि असर्शन में दिया हुआ था वो 100% सही है, और इसका जो रीज़न बताया जा रहा है कॉन्ग्रुएंसी को लेकर के, वो एक अच्छा एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो इन दैट वे यू कैन से दैट यस assertion is true, assertion is true, A is true and R is the correct explanation of A। तो इस तरीके से आपको समझना रहता है। चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स हम लोग समझेंगे, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। नाउ हियर यू आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू इफ द रीजन एक्सप्लेन्स द assertion। तो यही बात है कि आप जाने कि what is the actual thing। So assertion means a statement or claim that is presented as true। What is the thing here, that it is a statement or a claim, ठीक है ना। क्लेम करना है, जैसे नॉर्मल लाइफ में हम क्या क्लेम कर सकते हैं, सपोज दैट मेरी बाइक चोरी हो गई तो मैं कंपनी को क्लेम करूंगा कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। तो मैं किस बात पर क्लेम कर रहा हूँ, जो फैक्ट है उस पर क्लेम कर रहा हूँ। In the context of assertion and reasoning questions, an assertion is a fact or proposition that needs to be evaluated for its correctness or validity। देखिए correctness और validity पे डिपेंड है, मतलब assertion का सीधा सा बात यही है कि वो करेक्ट होना चाहिए और उसकी एक पक्की वैलिडिटी होनी चाहिए कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है, इसमें सच्चाई है, ये चीज़ assertion बताता है। इन शॉर्ट अगर एक लाइन में assertion बोला जाए तो assertion is a kind of a statement, assertion is a kind of statement which always a fact or it will always be true or it will have some validity, कुछ उसकी existence होनी ही चाहिए, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की।
assertion और रीजन का पहला ये एग्जाम्पल है, समझते हैं। एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, ग्रेटर देन 1 की कुछ एग्जाम्पल्स ले लो। 2, 3, 4, 6, 9, 12, 1 मोर 15। ठीक है, ये सारे के सारे हमने नंबर लिया किससे, 1 से बड़ा, ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब देखिए, here it is saying that every positive integer greater than 1 can be expressed as a product of primes, where we have taken the numbers 2, 3, 4, 6, 9, 12, 15. Can we express all these numbers as the product of primes? Yes, 2 is already prime number, no need to represent. 3 prime number, no need to represent. 4 is 2 into 2. ठीक है, 6 is 2 into 3, 9 is 3 into 3, 12 is 2 into 3, 2 into 2 into 3, and 15 is 3 into 5. So, is this statement correct? Yes, it is 100% correct. Now look at the reason. Reason is prime factorization of any integer is unique. We know that prime factorization of any integer is unique, okay, except for the order of the factors. Now what is this? This is the fundamental theorem of arithmetic actually. So prime factorization of any integer is unique except for the order of the factors. तो prime factorization आप किसका prime factorization निकालेंगे? We will get the prime factorization of composite number, and all composite numbers are greater than 1. Even the prime numbers are also greater than 1, but here we will focus on composite number as well as prime numbers also. तो prime factorization of any integer is unique except for the order of the factors. यानी ये reason जो है ये assertion को अच्छे से explain कर दे रहा है। ठीक है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि both A and R are true and R is the correct explanation of A. That's it. Clear? Moving to the next. We will look at the example number 2 now. Example number 2 is assertion A, the square root of 2 is an irrational number. We already know that root 2 is an irrational number. कोई doubt नहीं है because its decimal expansion is non-terminating, non-repeating, right? Okay, तो ये जो statement है क्या ये true है? Yes, it is true. पहले ही true लिख लो। अब reason is a number that cannot be expressed as a ratio of two integers is called an irrational number. What is saying in reason? Reason is the definition of irrational number, and here the assertion claims that square root of 2 is an irrational number. So square root of 2 is an irrational number, that is already true. And if we look at root 2 clearly, so root 2 can be written as root 2 by 1, where it is in the form of p by q. That means you can say the ratio, but p, which is actually root 2, is not belongs to integer. Here the reason is a number that cannot be expressed as a ratio of two integers is called an irrational number. तो यहाँ पर ये जो reason दिया हुआ है ना, this reason is the correct explanation of assertion A. So the answer will be both A and R are true and R explains A. R A को explain भी कर रहा है। देखो यहाँ दो ऑप्शन बनते हैं, both A and R are true. ये एक ऑप्शन रहता है और दूसरा ऑप्शन रहता है both A and R are true and R explains A. इस दोनों में फर्क यही है कि assertion आपको देखना है कि वो सही है कि नहीं है। अगर वो सही है तो true लिख दीजिए, false है तो false लिख दीजिए। आपको फोकस करना है R पर कि R जो है वो A को एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता है। अगर एक्सप्लेन करता है और सही है तो ये बात सही हो गई, और अगर R का किसी भी तरीके से A से रिलेशन नहीं है तो हम R को देखेंगे कि R वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। एक स्टेटमेंट की तरफ से देखेंगे कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। अगर गलत कह रहा है तो R विल बी रॉन्ग, A इज ट्रू, R इज रॉन्ग। लेकिन आपको यहीं पर फोकस करना होगा कि क्या कोई फैक्टर, क्या कोई टर्म ऐसा है, रीजन में कोई ऐसा टर्म, ऐसा फैक्टर है जो असर्शन को लिंक कर रहा है। अगर कर रहा है तो आपको थोड़ा सा उस पर एनालिसिस करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 दैट वी हैव इज assertion the least common multiple LCM of two numbers is always greater than or equal to their highest common factor.
ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट किस हद तक सही है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, ठीक है, LCM हमें लेना है टू नंबर्स, LCM ऑफ टू नंबर्स A एंड B इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B होता है। अब देखो ध्यान से समझना है, assertion is the least common multiple LCM of two numbers is always greater than or equal to the highest common factor HCF, and the reason is given the product of LCM and HCF of two numbers is equal to the product of the numbers। अभी आंसर में नहीं जाना है, हमें समझना है how could we say assertion and reason are both are true and R is the correct explanation of A in this case also। We have the relation LCM of AB into HCF of AB is equal to A into B, ठीक है। आप भी जानते हैं कि LCM की वैल्यू हमेशा HCF से बड़ी होती है क्योंकि उसमें सारे फैक्टर्स, सारे प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, लेकिन यहाँ बात आती है कि ये रीज़न दिया हुआ है और ये रीज़न इससे कैसे कनेक्टेड है ये हम कैसे समझें, ठीक है। तो देखिए कनेक्टेड कैसे है, अगर सपोज दैट आपके पास HCF है, A है, B है, मतलब HCF ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स या टू नंबर्स दिया हुआ है, तो क्या आप इस फॉर्मूला की मदद से LCM निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं भाई, क्यों, कैसे निकाल सकते हैं? वी कैन राइट LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B बाई HCF ऑफ AB, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि LCM कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड दैट रीजन इज रिटन हियर, यही रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि assertion A इज 100% ट्रू, R इज ऑल्सो ट्रू एंड R इज एक्सप्लेनिंग अबाउट A इन डिफरेंट वे, ठीक है। इसीलिए हम कहेंगे इस केस में भी कि बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R एक्सप्लेन्स A। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक एट एग्जांपल नंबर 4 केयरफुली। assertion is 0.101101111011 is an irrational number। क्लास 9 से लेकर के क्लास ऊपर तक के सारे बच्चे इर्रेशनल नंबर को पहचानते हैं, तो ये क्या इर्रेशनल नंबर है? यस इट इज, सो इट इज ट्रू। ओके, now reason is a number with a non-terminating and non-repeating decimal expansion is irrational। What is the definition of irrational number or what are the properties of irrational number? A number, this is only the property, that means this true statement is properly explained by this statement। So what will we say? That A and R are true and R explains A। आई थिंक assertion एंड रीजन के ये 4 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ नहीं आया देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड देन यू कैन आस्क योर डाउट्स। थैंक यू। मेरे प्यारे बच्चों, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, तो हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थर्ड वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और एक टॉपिक हमारा बाकी रह गया है HCF एंड LCM एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसलिए बाकी रखा है मैंने क्योंकि यही टॉपिक केस स्टडी में अप्लाई होता है। तो केस स्टडी चूँकि लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, उसको समझाने में थोड़ी सी टाइम लगती है, इसलिए उसको हमने थर्ड वन शॉट वीडियो में डाल दिया है। तो आप उसको भी ज़रूर से ज़रूर देखें क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, बहुत ही ईजिली क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि उसमें पूरा का पूरा कहानी दिया हुआ रहता है, आपको कहानी पढ़ना रहता है और आंसर लिखना रहता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बने रहिए और अभय एकेडमी चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ताकि थोड़ा मेरा मनोबल बढ़े। बहुत मेहनत करना पड़ता है ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन वीडियोस में, यूट्यूब वीडियोस में बहुत मेहनत है। तो थोड़े से मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए आपकी छोटी सी लाइक और आपकी छोटा सा प्यार सब्सक्राइब करिए, तो थोड़ा मुझे लगेगा कि हाँ इतना लाइक हुआ है। हालांकि मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है। Thank you. Take care. Bye-bye.